My dear students, all of you are most welcome in this morning session of English literature. I am Dr. Naresh Agrawal going to represent a very beautiful one act play, The Proposal. So let us start. It is very hilarious and you will enjoy much during the play when we read it. So let us start. A Marriage Proposal is a text play written by an eminent Russian writer, Anton Chekhov. And then it was translated into English version by Hilmar Bocage and Barrett H. Clark. The narrative, the story is commenced in the beginning by the explanation of setting in the text play which takes place in the reception room at Chubukov's country home in Russia. In the text of the play, in the theme of the play, you will see that there are three chief characters involved in the drama. Only three characters are there in major part. First, Stepan S. Chubukov, Natalia's father. Second, Natalia, Stepan's daughter, 25 years old. And Ivy Lomov, Stepan's neighbor who falls in love for Natalia. The plot of the play has been so laughter creating, so hilarious, so entertaining that we forget our own existence when we go through the drama. It enlightens readers that two people who fall in love each other can never be entirely unified and united if they cannot take the edge of their own selfishness. So let us start the theme of the play. Lomov pays a visit to his neighbor Chubukov. He is wearing a dress suit. Chubukov expresses a great pleasure. He becomes highly pleasant, so he welcomes him and gives him a warm handshake. But he is surprised to see him in a formal dress and thinks that perhaps he is on his way to some engagement. Lomov tells him that he has no engagement except with him. He says he has come to meet you only. He tries to explain the purpose of his visit, but he gets nervous and excited. Chubukov has a daughter named Natalia. She is 25 years old, still unmarried. In fact, he has come with a proposal to marry Natalia. He is so nervous that he finds it very difficult to tell Chubukov the purpose of his visit, how he can say to daughter's father that the boy has come for a love proposal to his daughter. So he was much hesitant. Chubukov thinks that he has come to borrow money because it was not disclosed at that time, and ask him not to beat about the bush, come to point. After much hesitation, stammering, much doubts, in hesitation, Lomov tells him that he has come to ask for the hand of his daughter, Natalia. By listening it, when Chubukov came to know it, naturally he felt very happiness and he kissed him.
He says that he will go to call his daughter and assure Lomov that she will at once accept this proposal. When Lomov is left alone, he feels that he is cold and his whole body is trembling. बॉडी कांप रही है. ये किसी फादर को कैसे कह दे कि ओ पिता मैं तेरी बेटी से प्यार करता हूँ. समझ में आ गई अपने ससुर को कैसे कह दे. सो ही वॉज ट्रेम्बलिंग. He thinks that Natalia is an excellent housekeeper, not at all bad looking, well educated. What more he should ask? Moreover, if he does not marry now, he will never get married. He has been already 35 in age. He has a weak heart and he suffers from palpitation. The worst of all is the way he sleeps. He hardly lies down and begins to doze when he gets a pull in his left side and something begins to hammer in his left shoulder and in his head. He walks about a little, lies down again and feels the same way again. It continued the whole night in his case, so he remembers that he must not reject this girl, he must accept. He was innerly thinking, only a well-regulated life can help him in this respect. Marriage alone can bring this much needed peace and regularity in life. Anyhow, Natalia comes and is surprised to see Lomov because her father has told her that there is a dealer who has come to buy something. She begs to be excused for wearing an apron and old dress. She asks if he would like to have something to eat. Then she offers him smoke and talks about the weather. She is also surprised to find him in a formal dress and tells him that he seems to be looking better. She thinks that perhaps he is on his way to ball. Lomov gets excited. He is unable to express the purpose of his visit. He wants to be very much brief, but in his excitement he starts beating about the bush. He speaks of the old relations of the Lomovs and Chubukovs. He tells her that his late aunt and his late uncle had a great regard for her father and her late mother. And furthermore, his property adjoins her. His oxen meadows touch her birchwoods. Natalia is shocked here that the oxen meadows belong to Lomov. She claims that meadows are hers and not his. Poor Lomov feels all the more excited. He tries to explain that once there was a dispute over the oxen meadows, but now everybody knows that they belong to him. Actually, in a pre-time we can call them pre-wedding type time. Husband and wife, they are making a great argument and they opposed each other. In the beginning they came to each other for marriage proposal. Now they are fighting against each other. This is the special technique that is being used in the text of the one act play. If he keeps explaining it for 2 days that the property belonged to him, she will not be convinced. She does not want to take his property and she refuses to give up what belongs to her. The discussion turns into a quarrel and the marriage proposal is forgotten. वो लड़का उस लड़की से विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया था और वो लड़का उस लड़की, दोनों के बीच इतना तगड़ा हंगामा, लड़ाई शुरू हो गई. मैरिज प्रपोजल भूल गए और लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया. Natalia tells him that she will immediately send her reapers to meadows. Lomov promises to turn them out. They shout at each other.
एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का। कभी वो मैरिज प्रपोजल लेके लड़का उस लड़की के घर गया था अभी 15-20 मिनट पहले, और अब लड़का और लड़की आपस में लड़ने भी लग गए, जो कि आपस में शादी की बात करने गए थे। इन द कोर्स ऑफ देयर क्वारल Chubukov enters. When Lomova is arguing about auction widows, he sides with his daughter. पिता भी उसी समय रूम में एंटर कर गया जब वो लड़का और लड़की उसकी बेटी आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं। खूब जोर घमासान युद्ध सा लड़ाई टाइप डिबेट हो रही है। आखिरकार पिता तो साइड लेगा, अपनी पुत्री की लेगा, उस पुत्री का पक्ष लिया। लोमोव अगेन ट्राइज टू एक्सप्लेन बट चुबुकोव डज नॉट लिसन. He tells Lomov that the latter cannot prove anything by yelling. He would rather give them to peasants than let him claim them. Lomov becomes rude. लोमोव कहाँ शादी का प्रस्ताव खुद ही गया था बात करने के लिए लड़की के पिता से, और लड़की से भी लड़ पड़ा और लड़की भी उससे लड़ पड़ी। अब वो एक तरह ससुर के सामने भी आमने सामने हो गए हैं। Chubukov begs him to address him respectfully, for he is not used to have people address him in that tone of rude person. Lomov calls him a land grabber and tells him that he will prove in the court. Chubukov gets furious, calls him an intriguer and accuses of his family. In this way they start to pull each other's family. एक दूसरे के परिवारों का नाम लेने लगे, एक दूसरे की बुराई उछालने लगे और एक दूसरे के वो सामने हो गए। Lomov says the entire race of the Lomov has always been honorable and never has one been brought to trial for embezzlement as Chubukov's uncle has been. लोमोव कहता है कि तुम्हारे तो अंकल के ऊपर भी कोर्ट केस चल पड़ा था, हमारे तो पूरे परिवार वंश में ही ऐसा नहीं हुआ। और लोमोव फिर कहता है कि चुबुकोव की जो मदर है वो हमबैक थी और उनके जो एनेसेस्टर थे वो मूर्खों की तरह लड़ते थे, झगड़ते थे। कहाँ प्यार प्रस्ताव लेकर के आया था लड़का खुद ही लड़की के घर पे, और कहाँ उनसे इतना झगड़ा शुरू हो गया। Now Lomov gets much excited. The palpitation of his heart becomes unbearable. His eyes are blurred. His foot goes numb. It seems as though he were dying. He takes his hat and staggers out of the room. Chubukov warns him not to come into his house again. अब लड़की लड़ली बेचारी जिससे वो शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, तो लड़की का पिता चुबुकोव कह रहा है ठीक है यार लोमोव, अब तू तेरे घर जा, अब वापस मेरे घर पे मत आना। बट वॉट हैपन्स, लिसन, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। द फादर एंड द डॉटर कर्स्ड हिम एंड टेल हिम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डर्टी नेम्स. गंदे गंदे नामों से उसको बुलाने लगे। पिता पुत्री दोनों उस लोमोव से लड़ने लग गए। आफ्टर लोमोव हैज़ गॉन, जब लोमोव उनके घर से चला जाता है, Chubukov says that the fool had the courage to come home with a marriage proposal. But Natalia hears that he had come to propose to her marriage, and that is why he was dressed in evening clothes. She begins to weep and falls into armchair. Ha ha ha. अब चुबुकोव अपनी बेटी को बताता है कि ये वो लड़का है जो तेरे लिए मैरिज का प्रपोजल लेके आया था। अब पता लग रहा छोरी को कि अरे ये तो मेरे से शादी का प्रस्ताव लेके आया था। अपने आप पे शर्म महसूस कर रही है, कितना झगड़ा करके उसको बेचारे धक्के देके घर से निकाला है। अब यही लड़की रोने लग रही है, वापस अपने बाप को कह रही है कि मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू कैसे ना कैसे इस लड़के को वापस बुला ला। What a funny side is going to happen in the drama. और वापस वो बेचारा लड़की की बात मान करके पिता चला जाता है। उस लड़के को जिसको अभी 15 मिनट पहले धक्के मार के घर से निकाला है, उसको वापस इनवाइट करता है कि यार तू एक बार आ तो सही मेरे घर जैसे तैसे। ओके, इट हैपन्स। सो ए ब्यूटीफुल स्टोरी इज गोइंग टू हैपन। When Natalia hears, she blames, etc., and she goes into
heartsick and asks her father to bring him back immediately. The poor father feels embarrassed. पिता क्या करता, बेटी की बात मानने लगा, छटपटाया बहुत और आखिरकार उस लड़के को वापस इनवाइट करने के लिए चला जाता है. She thinks if it were not for him, Lomov would not have gone. Her behavior is very funny. Chebukov rushes out and calls him back. उसको वापस बुला भी लाता है और मजे की बात वो लड़का भी इतना अपमान होने के बाद भी उनके घर वापस आ जाता है. Lomov returns. He is in a wretched state. His heart is beating terribly. His side is hurting him. His leg is lamed. Natalia feels sorry for your mistake. जब वो लड़का उनके घर आता है तो वो नटालिया बड़ा महसूस करती है कि अरे यार तू तो मैरिज प्रपोजल के लिए आया था, मेरे को पता ही नहीं, अपने तो झगड़ा करने लगे, मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा कहा, मुझे माफ़ करना. देखो पहली गलती. एंड एडमिट्स द टॉक्स एंड विडोज बिलोंग टू हिम. ठीक है, ज़मीन सब तेरी, मुझे क्या लेना है, अपनी तो मैरिज हो जाएगी फिर मेरी हो जाएगी. ये वापस में कहने का मतलब वही लड़की सोच रही है. शी सजेस्ट दैट दे शुड टॉक अबाउट समथिंग एल्स. किसी और बात पे, मुद्दे पे बात करें. शी वांट्स टू अवॉइड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट एंड विशेस Lomov टू मेक द प्रपोजल स्ट्रेट वे. और वापस आते किसी और मुद्दे पे बात करें और वो शादी की बात है, वापस से वो लड़की चाह रही है कि लड़का शुरू करे. शी आस्क्स हिम इफ ही इज गोइंग on hunting soon. Lomov replies that he expects to begin after the harvest. ठीक है, जब फसलें कट जाएंगी ना तो उसके बाद इस बात पर ध्यान देंगे. His dog Gas has gone lame. अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो उसकी भी एक टांग खराब हो गई. परहैप्स इट इज़ डिसलोकेशन. वो टांग की हड्डी एक स्थान से दूसरे स्थान पे हिल गई. और मे बी हैज़ बिन बिटन बाई सम अदर डॉग, या कोई दूसरा खा गया. पहले वाले झगड़े का परिणाम ये हुआ. Lomov इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज डॉग. Lomov था, अपने कुत्ते पर बड़ा नाज करता था. गैस, उसका नेम गैस है. ही हैज़ बॉट हिम फॉर 125 rubles and thinks it is very cheap. 250 रूबल्स का खरीद के लाया था वो कुत्ता जिसका नाम गैस था, और सोच रहा है कि ये तो बहुत अच्छी नस्ल का कुत्ता है और सस्ता ले आया. नटालिया डज नॉट एग्री. अब देखो, पहले लड़ाई झगड़ा करके भगा दिया, फिर लड़की ने बाप की जान खाई, उस लड़के को वापस बुला लिया, बेचारा लड़का आ गया. अब उन्होंने कहा चलो अपने प्रेम प्यार की बात करें, कोई और मुद्दे पे बात करें. अब वो लड़के ने अपने कुत्ते के बारे में ही बताना शुरू कर दिया कि मैं 250 रूबल का खरीद के लाया हूँ, और वो सामने इतनी बेवकूफ़ छोरी है, वो और नहीं तो कुत्ते की बात भी अड़ गई कि ये तो 250 का हो ही नहीं सकता. अभी इस लड़की ने वापस बुलाया था इसको, अपने पिता को कह करके बेचारा आ गया, और वापस से कुत्ते के पॉइंट पर फिर लड़ पड़ी उससे वो. They are again dragged into an argument over the superiority of each other's dog. उसने कहा मेरा डॉग अच्छा, उसने कहा मेरा डॉग अच्छा. वो लड़की कहती है मेरे यहाँ भी डॉग है, ये है वो है. वो कहता है मेरा डॉग, वो कहता है मेरा कुत्ता अच्छा, वो कहता है मेरा कुत्ता अच्छा. वापस से लड़का और लड़की में झगड़ा शुरू हो जाता है. What type of foolish they are. किस प्रकार के मूर्ख लोग हैं. In his opinion, leap is overshot. He has a short lower jaw and therefore he cannot catch his prey. और वो उसके जो कुत्ते का नीचे का जबाड़ा है ना वो बहुत छोटा है और वो शिकार को मार के खा नहीं सकता. ये बात वो उसके विरोध में कहने लग रही है. नटालिया कांट स्टैंड दिस. नटालिया तो बात मानने को तैयार ही नहीं है कि 250 रूबल पे खरीद के लाया है. शी थिंक्स दैट हर डॉग इज़ प्योर ब्रेड. ये प्योर ब्रीड का डॉग है कि whereas his dog is old, ugly and skinny. Nobody can figure out his pedigree. अब लड़की कह रही है जो मेरे घर में कुत्ता है ना वो तो ज़्यादा श्रेष्ठ है, तेरे घर का कुत्ता तो यूं ही है जिसकी तू प्रशंसा कर रहा है वो बेकार है. और नहीं तो अब इस बात पे लड़ पड़े दोनों. She does not like when a person does not say what he really thinks. In the course of hot discussion, पहले की तरह से दोबारा फिर आपस में इनका झगड़ा डिबेट शुरू हो गई. हॉट डिस्कशन हुआ. Lomov again get excited और Lomov को फिर गुस्सा आ गया. He feels the palpitation of heart. दिल तेज से धड़कने लगा. And his heart is bursting. और लग रहा था अब तो दिल उसका फट ही जाएगा. The father again enters the room. पिता फिर उनके कमरों में आया. उसने देखा यार ये बड़े बेवकूफ़ हैं, पहले लड़ रहे थे, अब छोरी ने इसको वापस बुलवाया, मैं बुला लाया, ये तो फिर झगड़ने लगे. ये कैसे किस्म के लोग हैं.
but turned to him for opinion. He says, "Guess certainly has his good points." उसने कहा नहीं नहीं, अब के पिता कह रहा है कि इसके कुत्ते की भी कुछ गैस की कुछ खास बात है। ही इज़ फ्रॉम ए गुड ब्रीड, अच्छी ब्रीड का, अच्छी नस्ल का है। हैज़ ए गुड स्ट्राइड, और लंबे अच्छे कदम रखता है। स्ट्रॉन्ग हॉन्चेस, और उसके हॉन्चेस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, पीछे से ऊंचे ऊंचे कंधे से नज़र आते हैं, ऊपर की हड्डियाँ, एंड सो फोर्थ। बट ही हैज़ टू फॉल्ट्स, ही इज़ ओल्ड एंड हैज़ शॉर्ट जॉ, लोअर जॉ। अब पिता कह रहा है कि सारी अच्छाई हैं, बस दो ही कमी है। एक तो बूढ़ा कुत्ता है, एक तो तुम्हारा बूढ़ा कुत्ता कैसा हो गया, बूढ़ा हो गया, और दूसरा इसका जो जॉवर है, लोअर जॉ है जो जवाड़ा नीचे वाला है, जो बहुत छोटा है। कहने का मतलब सांकेतिक मीनिंग देखो कि इधर उसकी उम्र भी 35 हो गई थी, समझ में आ गई, और इधर इसका कुत्ता भी ओल्ड है। लोमोव टेल्स चुबुकोव दैट ऑन ए हंटिंग एक्सपीडिशन हिज डॉग गैस हैज़ रन नेक टू नेक विद काउंट्स डॉग। ये कह रहा है, अभी लोमोव बता रहा है अपनी सफाई में कि अभी शिकार पे गया था मेरा कुत्ता, उसने टांग पकड़ ली और पता नहीं क्या क्या कर दिया, गर्दन पकड़ के गिरा दिया दूसरे को। बट लीप वॉज लेफ्ट बिहाइंड, और लीप तो पीछे रह गया था। Chubukov says that the count struck his dog with a whip. That is why he was left behind. Lomov reminds him that his dog was whipped because instead of running after the fox, he bit the sheep. Chubukov, however, does not agree. He requests Lomov to stop the argument. अब चुबुकोव उम्र में थोड़ा बड़ा है, लड़की का पिता, वो कह रहा है चल छोड़ो यार, इस आर्गूमेंट को छोड़ो, चुप कर जाऊँ। बट दैट डज नॉट सीम पॉसिबल। उनके बीच में, लड़का लड़की के बीच तो आर्गूमेंट बंद हो जाए ऐसा लग ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो बोलता ही जा रहा है ये भी। चुबुकोव गेट्स एंग्री, उसको गुस्सा आ जाता है। ही टेल्स लोमोव टू स्टे एट होम, कहता ठीक है यार तू घर पे ही रुक। विद हिज पाल्पिटेशन, तेरे थोड़ा सा हार्ट बीट तेज हो रही है। ही इज़ नॉट फिट फॉर हंटिंग, अब वो शिकार के लिए ठीक भी उचित भी नहीं है। दे अगेन अब्यूज ईच अदर एंड काम कॉल नेम्स, एक दूसरे को फिर वो गाली गलौज से शुरू करते हैं, फिर नाम बुलाते हैं। लोमोव बिगिन्स टू सी स्टार्स, लोमोव को बेचारा वो तारे दिख जाते हैं, दिन में तारे देखने लगता है। कहने का मतलब इवन पार्ट हिज बॉडी इज बर्स्टिंग, और वो बीमार सिमार तो था ही पहले ही। फॉल्स इनटू चेयर एंड फेंट्स, मूर्छित सा हो जाता है। सीइंग लोमोव फेंट, जब वो बेहोश सा हो गया ना लोमोव, ये सारी घटना चक्र देख के नटालिया थिंक्स दैट ही इज डेड। अब नटालिया, वो लड़की सोचती है अरे मैंने इतना झगड़ा किया कि इस चक्कर में मर तो नहीं गया बेचारा ये। शी स्टार्ट्स वीपिंग एंड क्राइंग, अब वो लड़की नटालिया वापस उस लड़के की याद में रोने लग रही है, चिल्ला रही है कि मानो कोई मर तो नहीं गया वो। एंड रिक्वेस्ट हर फादर टू कॉल द डॉक्टर, अपने पिता कहती है कि नहीं नहीं, एक डॉक्टर को बुलाओ इसको दिखाने के लिए। द पुअर फादर फील्स मिजरेबल, और जो पिता है बहुत ही अपने आप को दयनीय है, बुरी हालत में समझता है कि यार 2 बार बुला लिया, फिर इनका झगड़ा हो रहा है, करें क्या। ही होल्ड ए ग्लास ऑफ वाटर टू लोमोव लिप्स, और वो एक गिलास पानी का ले जाता है, लोमोव के लिप्स पे लगा देता है। बट द लेटर डज नॉट ड्रिंक वाटर, लेकिन वो बाद लोमोव पानी नहीं पीता। द फादर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए टेरिबल सिचुएशन, पिता देखता है कि अरे ये तो टेरिबल भयानक स्थिति है। ही इज़ सो मैड विद डेस्परेशन, और वो इतना ज़्यादा खिन्न सा हो गया, पागल सा हो गया। ही वांट्स टू शूट हिमसेल्फ, वो चाहता है अपने आप को मारना। इन द मीन टाइम लोमोव कम टू सेंस, और उसी समय क्या होता है, लोमोव को वापस से मूर्छा दूर हो जाती है और होश आ जाता है। ही सीज मिस्ट बिफोर हिज आइज़, और अपनी आंखों के सामने वो ऐसी मिस्ट धुंध सी उसको दिखाई देती है। चुबुकोव डज नॉट वांट टू टेक एनी मोर चांस बाय लिविंग देम अलोन, अब चुबुकोव ये नहीं चाहता कि उनको अकेला और छोड़ दे, कहीं वो झगड़ना पड़े इस आशा से। ही एट वन स्पीक्स आउट दैट हिज डॉटर इज़ विलिंग टू मैरी, और वो तुरंत कह देता है कि उसकी बेटी उससे शादी करना चाहती है। ही थर्स्ट लोमोव्स हैंड इनटू हिज डॉटर हैंड, और वो अपनी बेटी का हाथ लोमोव के हाथ में पकड़ा देता है। एंड गिव्स देम हिज ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देता है। ही जस्ट वांट्स टू बी लेफ्ट इन पीस, और वो बिल्कुल शांति में रहना चाहता है। लोमोव इज स्टिल डेज्ड, और लोमोव अभी भी बहुत ज़्यादा अचंभित होता है। ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और वो समझ ही नहीं पा रहा लोमोव के क्या हो रहा है। बातों बातों में शादी भी हो गई। एट लास्ट दे किस ईच अदर, फिर करते हैं किस एक दूसरे को, एंड रिकनसाइल्ड, और
मिलन की बात करते हैं, बट दे अगेन स्टार्ट क्वारलिंग ओवर देयर डॉग्स। फिर वो कुत्ते की बात है, फिर लड़ना शुरू करते हैं। नटालिया सेज गैस इज़ वर्स दैन लीव, और वो कहती है कि जो गैस है ना, गैस नाम का जो कुत्ता है उसका वो ज़्यादा बुरा है, लीप उसका कुत्ता सही है। लमो सेज बेटर अमिड देयर शाउटिंग द पुअर ओल्ड फादर शाउट्स शैम्पेन शैम्पेन। और वो जब उनका दोबारा से आर्गूमेंट शुरू होता है तो उसका पिता ज़ोर से बोलता है कि ये नहीं कहता आर्गूमेंट बंद करो, ये कहता है शैम्पेन शैम्पेन, कहने का मतलब जश्न मनाओ जश्न मनाओ, वो शैम्पेन पियो और ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, तुम्हारी मैरिज हो गई है। इस प्रकार से ये बहुत ही रोचक ड्रामा है जिसको सुन कर के पढ़ कर के हमें बहुत हंसी आती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।